BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. غیر سرکاری اعلان کے مطابق زیر حراست رہنما وسیم اختر کراچی میں MQM کی طرف سے میئر منتخب، مگر کیا وہ سیاسی طور پر مؤثر ہوں گے؟ نئے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ وسیم اختر بھائی کی کوئی ایکویشن بنے، ارشد وورا جو ڈپٹی میئر ان کی ایکویشن بنے، تو ہم کچھ اختیارات بات چیت کے ذریعے سے لیں گے. آسٹریلیا کے ایک اخبار کی جانب سے انڈیا کے سب مرین پروگرام کی انتہائی خفیہ تفصیلات شائع کرنے کے بعد بھارتی بحریہ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیے گا کہ افریقی ملک یوگینڈا میں انجیر کے درخت کی چھال سے کیسی منفرد مصنوعات بنائی جاتی ہیں. کراچی میں آج بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہوا. KMC 5 DMCs اور ضلع کونسل میں آج میئر اور چیئرمین کے لیے ووٹ ڈالے گئے. KMC میں متحدہ قومی موومنٹ کے کونسلرز کی ایک اکثریت ہے اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق اسی جماعت کے امیدوار وسیم اختر میئر کی کرسی پر براجمان ہوں گے. 7 سال تاخیر سے ہونے والے یہ انتخابات نئے بلدیاتی نظام کے تحت منعقد کیے گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام منتخب نمائندوں کی خواہشات اور شہریوں کی توقعات پر پورا اترے گا؟ کراچی سے ریاض سہیل. یہ ہے ملی ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کی یونین کمیٹی مظفر آباد کالونی. یہاں کے نو منتخب چیئرمین مولانا احسان الحق ٹھکروی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان گلیوں کی صفائی ہے، اور موجودہ بلدیاتی نظام میں ان کے اختیارات علاقے کی صفائی اور گلیاں پختہ کرنے تک ہی محدود ہیں. مولانا احسان الحق مسلسل تیسری مرتبہ اس یونین کمیٹی سے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، لیکن موجودہ بلدیاتی نظام میں وہ خود کو بے بس سمجھتے ہیں. اور اب اس وقت آپ کے سامنے یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، ایک ٹیکنیشین صاحب ہے وہ لگا رہے ہیں. پتہ نہیں، ہمیں نے ان کو بھی چیک نہیں کیا کہ وہ کس لیول کے ٹیکنیشین ہے یا ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. تو اب یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اسکولوں میں ہم جا سکتے ہیں، نہ اسپتالوں میں جا سکتے ہیں. کراچی شہر اور اس کے مضافات کو اس میونسپل کارپوریشن کے علاوہ 5 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز اور ایک ضلعی کونسل میں تقسیم کیا گیا ہے، جہاں آج میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے ووٹنگ ہوئی. KMC سے جماعت اسلامی اور MQM نے 2 بار شہر کے بلدیاتی اداروں پر حکمرانی کی ہے. تیسری بار بھی MQM کے سامنے بظاہر کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، ماسوائے اس کے کہ MQM کا نامزد میئر وسیم اختر اس وقت دہشت گردوں کی معاونت کے الزام میں گرفتار ہے، اور تمام تر دباؤ کے باوجود یہ جماعت ان کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ تھی. اس شہر کے بلدیاتی اداروں پر MQM کی گرفت جنرل مشرف کے بلدیاتی نظام میں مضبوط ہوئی، جب پولیس کے علاوہ تمام ہی محکمے ان کے ماتحت تھے. MQM اس وقت بھی بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے کوشاں ہیں. پہلی یہ کہ حکومت سندھ کو انگیج کر کے نئے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ وسیم اختر بھائی کی کوئی ایکویشن بنے، ارشد وورا جو ڈپٹی میئر ان کی ایکویشن بنے، تو ہم کچھ اختیارات بات چیت کے ذریعے سے لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تحریک بھی چلے گی عوام کو موبلائز کرنے کی، متحرک کرنے کی. حالیہ بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون تیسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے. اس سمیت دیگر جماعتیں بھی یہاں بااختیار بلدیاتی نظام چاہتی ہیں. ریاض سہیل، BBC نیوز، کراچی. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں متعارف کرایا گیا نظام تباہی کا نظام تھا. بلدیاتی اداروں میں یہ قابلیت ہی نہیں کہ وہ اتنے محکمے سنبھال سکیں. کراچی میں ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے ان سے انٹرویو کیا. گفتگو کا آغاز اس سوال سے ہوا کہ اگر پرویز مشرف کے دور میں بلدیاتی اداروں کے پاس ضرورت سے زیادہ اختیارات تھے تو اس وقت ضرورت سے بہت کم. ایسا کیوں؟ پرویز مشرف کا جو قانون تھا جو انہوں نے بنایا تھا، ہمارے حساب سے ہم نے تو بہت کہا کہ وہ ڈیمولیشن نہیں تھا، وہ ڈیمولیشن پلان تھا ایک جو بنایا گیا. ان کو کہتے ہیں بلدیاتی، آپ نے خود کہا نا بلدیاتی ادارے، تو بلدیات کے حساب سے جو کام کرنا ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے. ان اداروں کو بہت زیادہ پاور دے دیے گئے تھے کہ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہو گئی تھی پروونشل گورنمنٹ. بیلنس اس وقت خراب ہوا تھا. نہیں تو بلدیاتی اداروں کے جو میونسپل سروسز ہیں، اور اگر آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں تو بلدیاتی اداروں کے یہی 19-20 یہی پاورز ہوتے ہیں. تو وہ پاورز دیے گئے. ہم نے تو کافی، اور اس پہ بھی کرٹیسزم ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل کراچی میں
KMC से पावर्स डिवॉल्व करके DMCs को दिए गए, तो ये तो ठीक है कि DMCs को चाहिए। फाइनेंशियल पावर्स की बात की जाती है तो जो उनका मैंडेट है, जो उनका काम है, उसके फाइनेंशियल पावर्स उनको एज ए सिंगल लाइन ट्रांसफ़र दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से कि अगर ये इदारे और बेहतर काम करेंगे तो फर्दर डिवॉल्व करके इनको काम दिए जा सकते हैं। तो वैसे ये ऐसा नज़र नहीं आता कि काफ़ी ममालिक में ख़ास तौर पर जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है या दूसरे हैं इस किस्म के, वहाँ पर जो लोकल काउंसिल्स हैं वो ही एजुकेशन और हेल्थ के जो महकमे संभालती हैं? हर जगह पे फ़र्क है। हम अमेरिका और यूरोप से अपने आप को लंदन से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ज़रा हमसाए मुल्कों में चले जाए ना, आपको कंपरेबल्स देखने पड़ते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि वो हमारी लोकल काउंसिल्स इतनी, उनकी कैपेसिटी इतनी हम बिल्ड कर लें कि ये काम चला सके, लेकिन हमारे यहाँ ये लोकल काउंसिल्स जो हैं वो बल्दियाती निज़ाम के सिलसिले में उनकी यही कैपेसिटी अभी, और ये मैं नहीं कह रहा कैपेसिटी हमने और बढ़ानी चाहिए। स्कूल्स भी मेट्रोपॉलिटन के अंदर तो स्कूल्स भी हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं, ये पहले भी थे, ये अभी की बात नहीं है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर स्कूल्स हैं, लेकिन कराची में सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट की जो मेट्रोपॉलिटन स्कूल्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे। जैसे आपने ख़ुद ने जिक्र किया कि कराची के अलावा बाकी सिंध के तकरीबन तमाम ही ज़िला में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की है। इवन कराची में कराची 6 में से मेरे ख्याल 2 या 3 DMCs ऐसी हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसके अलावा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो ऐसा नहीं तो है। इन ज़ाहिर है कि इतनी अक्सरियत है, तो क्या आप अपने लोगों को ही कुछ अख्तियार देंगे इस लोकल बॉडी सिस्टम में? देखिए, आप भी मेरे हैं ना, तो आपको मैं अख्तियार जो ही दूंगा जो आपका कानून में बनता है। कानून के हिसाब से जो भी इख्तियार है वो सारे दिए जाएंगे। अपने पराए कोई पराए नहीं है, सारे इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन कानून के हिसाब से इख्तियार दिया जाएगा। तो कराची की तारीख में पहली मरतबा ऐसा होगा कि मेयर का जो नामजद उम्मीदवार है वसीम अख्तर, वो जेल में होगा, तो आप नहीं समझते इससे मज़ीद तलखियाँ बढ़ेंगी? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पूरा हक है, को जिसको भी, इसलिए कि उनकी अक्सरियत है, इलेक्शन में जो भी वो नॉमिनेट करते हैं अपना मेयरियल कैंडिडेट, उसको पूरा हक है कि वो इलेक्ट हो। वसीम ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो करना है। वसीम अख्तर को कोर्ट में ऑलरेडी केस है उनकी बेल का भी, और वो कोर्ट, अब वो सब्जुडिस मैटर एक है, वो कोर्ट ही डिसाइड करेंगी। हाँ, ज़रूर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। शायद मुझे हिस्ट्री नहीं पता कि पहले कोई ऐसा मेयर जो है वो जेल से इलेक्ट हुआ, लेकिन मैंने मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी आपको बताया कि जेल से इलेक्ट हुए इन द पास्ट। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह हमारे नामा निगार रियाज सुहेल से बात कर रहे थे। इंडिया के सबमरीन प्रोग्राम की इंतहाई खुफिया तफसीलात अफशा हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार के मुताबिक ये मालूमात 22,000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल है। वाज़ेह है कि इंडिया फ्रांस की मदद से मुंबई में 6 जदीद तरीन आबदोज़ बना रहा है। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $3.5 अरब लागत आएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है, लेकिन भारतीय बहरिया का दावा है कि मंजर-ए-आम पर आने वाली मालूमात पुरानी है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दिल्ली से सुहेल हलीम। इंडिया के सबमरीन प्रोग्राम के लिए ये बुरी खबर है। ये आबदोज़ फ्रांसीसी कंपनी DCSN के इश्तराक से मुंबई में बनाई जा रही हैं, और सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन के मुताबिक ये इंतहाई हसास मालूमात अगर दूसरे ममालिक के हाथ लग जाती है तो इन आबदोज़ों की इफादियत बुरी तरह मुतासिर होगी। लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात में ये तफसील भी शामिल है कि आबदोज़ कितनी रफ्तार से चल सकती है, कितनी गहराई तक जा सकती है और कितनी आवाज़ करती है, जिसकी वजह से गहरे समुद्र में इसका पता लगाना और इसे तबाह करना आसान हो जाएगा। इंडिया के वज़ीर दिफा मनोहर पर्रिकर का कहना है कि ये हैकिंग का नतीजा है। ये अभी वाज़ेह नहीं है कि ये मालूमात इंडिया से हैक हुई है या फ्रांस से, और ये कि ऑस्ट्रेलवी अखबार के अलावा और किसको हासिल हुई है। मुंबई के मज़गांव डॉक में 6 आबदोज़ बनाई जा रही हैं। एक आबदोज़ तैयार है और फिलहाल आजमाइश के अमल से गुजर रही है। इंडिया के पास 13 आबदोज़ हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बहुत पुरानी हो गई हैं। बहरिया का सेफ्टी रिकॉर्ड भी काफ़ी ख़राब रहा है, और मुंबई में ही 3 साल पहले एक आबदोज़ में धमाका होने की वजह से बहरिया के 18 अहलकार हलाक हो गए थे। बहरिया को आम तौर पर तकरीबन 6 आबदोज़ों की खिदमत ही हासिल रहती हैं। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। वस्ती इटली में रिख्तर पैमाने पर 6.2 की शिद्दत वाले ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदिम हुईं और हुक्काम के मुताबिक 70 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़लज़ले से पूरा गांव ढह गया और मुतअद्दिद लोग मुनहदिम इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। जियोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक ये ज़लज़ला पेराग्या शहर के जुनूब मशरक़ में 76 किलोमीटर के फासले पर आया है।
तुर्क हुक्काम के बकौल तुर्क फौज ने शाम के कस्बे जराबलस में खुद को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली शिद्दत पसंद तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और यह ऑपरेशन जराबलस पर शदीद बमबारी से शुरू हुआ, जिसमें तोपखाना और तुर्क फजाइया हरकत में रहे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा, अमरीकी मईशत की तरक्की में मददगार कोयले की सनत सदारती इंतखाबात में क्यों बहस का मौजू बनी है, और अफ्रीकी मुल्क युगांडा में दरख्त की छाल या बाग से क्या क्या चीजें बनाई जा रही हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात का मुल्क की तवानाई की पॉलिसी पर गहरा असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं और उन्होंने कोयले की सनत को बहाल करने का वादा भी किया, लेकिन हिलरी क्लिंटन ने खबरदार किया कि दुनिया के सबसे संगीन खतरात में से एक माहौलियाती तब्दीली है। BBC के डेविड शुकमन की ओहायो से रिपोर्ट, राजा जुल्फ़िकार अली की ज़बानी। दरियाए ओहायो पर कोयले से भरी बेशुमार कश्तियाँ, ये एक ऐसी वसी सनत का हिस्सा हैं जो कि 100 साल से ज़्यादा अरसे से अमरीकी मईशत को फलने फूलने में मदद दे रही है। लेकिन जब मैं इस वसी कॉम्प्लेक्स का दौरा कर रहा था तो मैंने जाना कि कोयला भी जैसे वाइट हाउस की रेस में फंस सा गया है। सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इसकी हिमायत करते हैं और हिलरी क्लिंटन नहीं करती। कई मीलों तक फैली हुई कोयले की कानें यहाँ ज़मीन के नीचे शहरों की मानिंद हैं, लेकिन आलूदगी पर सख्त पाबंदी और सस्ती गैस की वजह से कानकनी की दर्जनों कंपनियां दिवालियापन का शिकार हैं। ये शिफ्ट के ख़त्म होने का वक्त है। साल के आखिर तक ये कान बंद हो जाएगी। कानकुन माहौलियाती तवाज़ुन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों और सदर ओबामा की माहौलियाती तब्दीलियों की पॉलिसियों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। कोयले के कानकोनों के पास घर के अलावा कुछ नहीं होता। जब उनकी नौकरियां चली जाती हैं तो कोई नहीं होता जो उनके घर खरीद सके। लिहाजा वो लोग जो इज्जत और वक़ार के साथ काम करना चाहते हैं उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता। ये वो अमेरिका नहीं जो मुझे अजीज़ है। इसीलिए मैं यूं खुलकर बात करता हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि ओबामा अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी लानत है। जब कोयले को जलाया जाता है तो मसला पैदा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं, लेकिन हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि ये मसला है और वो इसकी बजाय आलूदगी से पाक मुस्तकबिल की पेशकश करती हैं। ओहायो के एक और इलाके में तवानाई हासिल करने का एक साफ तरीका। फर्स्ट सोलर नामी इस मकामी कंपनी में रोबोट्स और इंसान हर सेकंड एक सोलर पैनल बना रहे हैं। एक नई सनत उभर रही है। टोलीडो में कायम म्यूज़ियम ऑफ आर्ट और शहर के चिड़ियाघर में सोलर पैनल हैं। काबिल तजदीद तवानाई अब यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक खुसूसियत बनती जा रही है और पूरे खेतों को इस तरह ढांपना अब कोई गैर मामूली बात नहीं। I just think we have some politicians that are fighting the last war. मेरा ख्याल है कि सियासतदान एक पुरानी बहस में उलझे हुए हैं। ऐसे लगता है कि वो मुस्तकबिल में होने वाली किसी शय के बारे में लड़ रहे हैं, लेकिन शमसी तवानाई आ चुकी है, बल्कि हम एक बहुत अहम संग मील पार कर चुके हैं और उन्हें मालूम ही नहीं। And they just don't know it yet. ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और तवानाई पर मबनी उसके फैसले या तो पेरिस के मौसमियाती मुआहदे के तहत ग्लोबल वार्मिंग से निपटने को फ़रोग़ दे सकते हैं या फिर उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका को इस मुआहदे से बाहर निकाल लेंगे, जबकि हिलरी क्लिंटन इसकी हिमायत करती हैं। लिहाजा बहुत सी बातों का इन्हिसार इस इलेक्शन के नताइज पर है। कपड़ा, बार्क या दरख्त की छाल से बने, शायद ही कभी सुना हो, लेकिन यकीन करें ऐसा भी होता है। और ये एक ऐसी इजाद है कि जिसका युगांडा वालों ने सदियों से फ़ायदा उठाया है। बार्क से बने कपड़े न सिर्फ रिवायती लिबास के लिए बनते हैं बल्कि माहौल दोस्त भी हैं, मगर सनती दौर में इनकी खपत में कमी आई है तो हम अब मकामी डिज़ाइनर इस कपड़े का नए अंदाज से फिर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक पुरानी रीत को जदीद शक्ल देने की कोशिश भी है। नैन्सी कोचिंगीरा की रिपोर्ट, समरा फातिमा की ज़बानी। देखने में ये चमड़े की मानंद लगता है और ये उतना ही स्टाइलिश भी है, लेकिन ये दरअसल दरख्त की छाल की अंदरूनी तह से बना है। युगांडा में दरख्त की छाल से 600 साल से ज़ायद अरसे से कपड़ा बन रहा है और ये अंजीर के दरख्त से हासिल किया जाता है जो कि मरकजी युगांडा में उगाए जाते हैं।
इस कपड़े को बनाने के लिए पहले तने की ऊपरी सतह छीली जाती है और फिर छाल की अंदरूनी सतह केले के तने से बने औजार से उतारी जाती है। हम चाहते हैं कि ये दरख्त अगले 100 साल तक यहाँ लगे रहें। आपको इसे हासिल करने के लिए दरख्त को नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ उसकी तह उतारनी है। मुस्तकबिल में यही तह वापस आ जाएगी। छाल उतारने के बाद दरख्त को केले के पत्तों से लपेट लिया जाता है, जो कि दरख्त के लिए मरहम का काम करता है। इस छाल को बाद में उबालकर और छोटी हथौड़ियों से कूटकर उसकी असल नाप से 10 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया जाता है। युगांडा की सल्तनत में रिवायती लिबास होने के अलावा ये और भी कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। इस कपड़े की तारीख इतनी दिलचस्प है कि इसे यहाँ इस सकाफती म्यूजियम में भी जगह दी गई है और अब बहुत से मकामी डिजाइनर इसे दुनिया भर में दुकानों में वापस लेकर आ रहे हैं। सारा नाची सेंजे उन डिजाइनर्स में से एक हैं जो कि कंपाला में अपनी दुकान में छाल से बने कपड़े और मसनूआत फरोख्त करती हैं। मुझे शुरू ही से इस कपड़े से लगाव हो गया था। इसका रंग, इसके पीछे जो तारीख है और इसका युगांडा में आसानी से मिलना, ये सारी बातें मुझे पसंद हैं। लेकिन इसमें एक मसला था। छाल के सिले हुए कपड़े जब मुतारिफ करवाए गए तो उसे सिर्फ कफन दफन में इस्तेमाल किया जाता, जिसकी वजह से लोग इससे कतराते थे। जब मैंने 1998 में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसकी इतनी कदर नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसे मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया तो लोगों को ये पसंद आया और बहुत ही मकबूल हो गया। इस कदीम कपड़े को नए अंदाज में इस्तेमाल करने के तौर तरीकों से इसके गिर्द जो सोच है वो तब्दील हो रही है और सारा जैसे डिज़ाइनर्स इसको बैनुल अक़वामी सतह पर लाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। छाल का कमाल। नैन्सी कोचिंगेरा की रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन तो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप चाहें तो अपने ख्यालात का इजहार करें। फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।